युवा शक्ति, युवा पीढ़ी, युवा सोच है हम, युवा वर्तमान है हम, युवा भविष्य है हम, युवा हमारा अभिमान है, युवा हमारी जान है, युवा ही हमारी पहचान है। इस राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। Good afternoon, each and everyone present here. Today, we all have gathered here online meeting for celebrating National Youth Day, also known as Yuva Divas. In lieu of this, I, Payal Gupta, student of B.Ed Semester 2, would like to welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Gangadhar Panda, Vice Chancellor of Kulhan University, Chayawasa, our Honorable Patron, Dr. Lunda, Principal of Mahila College, Chayawasa, Honorable Special Guest, Dr. Dara Singh Gupta, NSS Coordinator, Kulhan University, Chayawasa, Dr. Arpit Suman Topu Ma'am, NSS Program Officer of NSS B.Ed Unit, Mahila College, Chayawasa, Dr. Onima Manki Ma'am, HOD of B.Ed Department, Mahila College, Chayawasa, all respected professors of Mahila College, Chayawasa, my lovely juniors and my dear classmates. Thank you everyone for giving your presence in this meeting from your precious time. कहते हैं राष्ट्र की सबसे ताकतवर शक्ति युवा शक्ति है, क्योंकि एक युवा ही नई ऊर्जा, नया जोश, नई सोच का स्रोत होता है. With these lines, I would like to invite Dr. Loknath Sir, Principal of Mahila College, Chayawasa, to share few words on this auspicious day. Sir, I invite you to come on mic. Oh yes, thank you. And I first welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Gangadhar Panda sir, and I welcome our NSS Coordinator, Dr. Dara Singh Gupta ji, and Arpit Suman Topu, NSS Program Officers, all teachers, students of B.Ed and general students, and all who are hearing and participating in this Youth Day celebration on the eve of the birthday of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is quite likely to be followed by our youths, as you told in your introductory address, the anchor. Simply, the today's world has become very complex world, and in this complex world, the role of youth, as Swami Vivekananda was deliberating throughout his life, although he lived a very short life, is very important for today. Born on 12th of January 1863, died on 4th of July 1902 in Belur Math, Havra. His guru, as you have been knowing, has been a great rishi, that is called Maharshi Paramhans Ramakrishna. The famous lecture he orated in 1893, Chicago World Parliament of Religions, whereupon he gave details of tolerance and non-fanaticism, which we are observing today, the fanaticism. He was to suggest our youth to do away this plague of fanaticism. Actually, and he emphasized the need of celibacy, which is brahmacharya, and keeping away from sensuous practices. So his message was divine unity of existence and unity in diversity. Swami means, all youth must know that Swami means one who has the bliss of discerning wisdom, one who has the property of explaining the truth of nature and truth of spiritualism and truth of the existence itself. So these are the lessons should be learned from him. Particularly, he was addressing youth of our country after returning in 1893, although he involved himself
in so many social problems. That's why he died in such an early age. Morality with control of mind. And thoughts about this day. It's really great to know a lot about it from you. Now, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Dr. Gangadhar Panda, Vice Chancellor of Kulhan University, Chaivasa, to give his blessings and share his thoughts about this day. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Dr. Loknath ji, the principal of Mahila College, and our NSS program coordinator, Dr. Dara Singh Gupta ji, and NSS program officers, and all faculty members of Mahila College, Chaivasa, and my dear students and youth for whom this program is dedicated. आज एनएसएस के द्वारा ये कार्यक्रम क्यों मनाया जा रहा है, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि एनएसएस जो है ये युवाओं का कार्यक्रम है और ये केवल भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये राज्य सरकार का भी इतना ही अंशदान है. अभी क्या बदला होगा उस कार्यक्रम के बारे में ज्यादा गुप्ता जी बताएंगे, लेकिन मैं जो किसी विश्वविद्यालय का एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था उस समय में नियम ये था कि भारत सरकार के कार्यक्रम है तो भारत सरकार की ओर से 50% अनुदान आता है और 50% अनुदान राज्य सरकार से मिल करके फिर ये राज्य सरकार के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त होता है और विश्वविद्यालय अपने नियामक के अनुसार, मानक के अनुसार ये महाविद्यालयों को प्रेषित करता है. और दो प्रकार का कार्यक्रम होता है, एक नॉर्मल कैंप, एक स्पेशल कैंप. पहले स्पेशल कैंप 10 दिन का हुआ करता था, आजकल उसको काट करके 7 दिन का कर दिया गया. तो जो कि ये युवाओं के लिए ये उद्देश्य है और आज युवा दिवस है, इसलिए विशेष रूप में हर कोई एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 7 दिन तक जो ये कार्यक्रम को आज से शुरू करके 7 दिन तक करा कर. और मैं जो विश्वविद्यालय में था आज से शुरू करके हमारे जितने संबंध महाविद्यालय है सबको हेडक्वार्टर्स में बुलाते थे और सभी एनएसएस के वॉलंटियर के द्वारा, स्वयंसेवी के द्वारा हम 7 दिन तक विभिन्न प्रतियोगिता कराते थे. निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रांकन प्रतियोगिता, सभा प्रतियोगिता कोई करके अंतिम दिन में ये 7 दिन के फलश्रुति के रूप में सबको पुरस्कृत करते हैं. तो यहाँ इतना विस्तार से होता है कि नहीं होता है, मैं तो फील्ड में जाकर देख नहीं पाया हूँ और उसको दारा सिंह गुप्ता जी जो हमारे एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है वो बेहतर इसमें जानते हैं. लेकिन ये खुशी की बात है कि आज के दिन एनएसएस के ओर से ये युवा दिवस का पालन हो रहा है और आज के हमारे जो प्राच्य के दिन में, उनके जयंती के दिन में हमारे लिए एक वरदान होगा, उनके लिए हमारी जो है भावभीनी श्रद्धांजलि भी होगी. अब मैं बता रहा हूँ कि वो क्या क्या किए जो अचंबा कर लेते हैं, जो लीक से हट करके सभी लोग तो अपने बनाए हुआ मार्ग में जाते हैं, लेकिन जो अलग से एक पगडंडी शुरू कर देता है वो विशिष्ट होता है. तो विवेकानंद जी प्रथम तो जिस नरेंद्र उनका नाम था वो जनरल हाई स्कूल कॉलेज में पढ़े, लेकिन उनका रुझान जो है गुरु की कृपा से ये रामकृष्ण परमहंस के प्रति रुझान बढ़ा और उनके मन में वो बहुत नास्तिक थे, पहले जाकर तर्क करते हैं कि भगवान की उपलब्धि कैसे होगी, कौन दिखा पाएगा. जैसे वो रामकृष्ण परमहंस के पास चले गए, तुरंत उनको कहते दिखा सकते हैं ना, हाँ दिखा सकते हैं, कैसे ना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ उसी प्रकार जो है ना आपको भगवत दर्शन करा सकता हूँ. और उनने उनको अपने आत्मशक्ति के द्वारा, अंतर ज्ञान के द्वारा माँ काली का दर्शन कराया. जो भी आप लोग जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, दक्षिणेश्वर काली
जो मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर है, उस मंदिर में आप देखेंगे वहीं पर रामकृष्ण परमहंस ने माँ के साथ इनका साक्षात्कार किया था। जिस Thank you so much, sir, for sharing your memories and encouraging thoughts about this day with us. We are really glad to get a lot of knowledge from you about this, and we will definitely impose this in our lives. Now, we know that the theme of National Youth Day 2022 is It's All in the Mind. What does it mean? It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you if you allow it. स्वामी विवेकानंद जी ने का कहना था, सभी शक्तियाँ आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं. The only thing is, if you want different results in life, all you have to do is to change your mind. So, take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. With this line, I would like to present a PPT on why National Youth Day is celebrated. Yes. Okay, sir. National Youth Day. This National Youth Day inspired the youth to build a better and smarter nation. You are not audible. Something. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Follow it. This quote by philosopher Swami Vivekananda still reverberates in the ears of every individual who wishes to overcome any difficulty with their fearless attitude. Swami Vivekananda's life and teachings have encouraged millions across the world. Now, let us know who was Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was born Narendranath Datta on January 12, 1863 in Kolkata, West Bengal. Vivekananda Jayanti is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekananda. In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day, and since 1985, the event is celebrated in India every year. Now, let us see what was the history. It was a decision of Government of India taken in 1984 to celebrate the birthday of great Swami Vivekananda. The future of a nation depends upon the youth of the country. So, best wishes on National Youth Day to the young minds of our nation. Thank you. कुछ बोलने का मौका प्रदान किया. हम सभी यह जानते हैं कि आज 12 जनवरी 2022 को स्वामी विवेकानंद जी जयंती को हम युवा दिवस के रूप में मना रहे हैं. युवा दिवस अर्थात युवाओं के लिए दिवस. अतः मैं युवाओं को महत्व देते हुए अपने शब्दों का विश्लेषण करना चाहती हूँ. कहा जाता है, मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में देश की तरक्की होती है. उदाहरण के लिए, अगर हमारा भारतवर्ष एक पक्षी है और हमारे भारतवासी उस पक्षी की काया है, तो हमारे युवा पीढ़ी उस पक्षी की पंख है जो उसे उड़ान देती है. अतः हमारे देश की उड़ान, हमारे भारत की उड़ान हमारे युवा पीढ़ी से है. हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश का मेरुदंड है जो पूरे देश का संचालन कर सकता है. हम सभी यह व्यूज एंड थॉट्स अबाउट दिस डे. थैंक यू पाल. माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पंडा सर, माननीय प्राचार्य डॉक्टर लोकनाथ सर, बीएड महिला कॉलेज के हेड डॉक्टर ओनिमा मानकी मैम, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर अर्पित सुमपन टप्पो में, उस साथ ही साथ और भी जितने एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उस कॉलेज के, बीएड के टीचर्स चिदेंद्र सर, क्रिश सर, धनंजय सर, हाशमी सर, पुष्पा मैम, बबीता मैम, इसके अलावा जितना का नाम नहीं ले सका सभी टीचर्स, बीएड के अलावा और भी अपने विभाग के शिक्षक, विभाग टीचर्स, उपस्थित एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ्स एंड प्रेस मीडिया. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये युवा महोत्सव जो है प्रति वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी
157वीं स्वामी विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम पौंडीचेरी पुडुचेरी में मनाया जा रहा है, जिसका कि ऑनलाइन ही सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर केंद्र ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के ऑनलाइन आयोजन का विकल्प चुना है। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 और 13 जनवरी 2 दिन खासकर ऑनलाइन मोड पे ही रखने का विचार किया है। और यह जिसमें कि नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts and throwing light on the lives of Swami Vivekananda and Maharshi Arvind Ghosh and their life value. It was really interesting for us. So we will surely imply this on our lives. भारत को देखने के तरीके को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी 1985 में भारत सरकार ने एक नोट बनाया इस उद्देश्य के साथ कि विवेकानंद की विचारधारा विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित कर सकती है और उनके जीवन को आकार देने में मदद कर सकती है। तभी से उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हर साल स्कूलों और कॉलेजों में भाषणों, प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं में प्रतिभा को बढ़ाने में मदद करना है और उन्हें यह व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है कि वे विभिन्न मुद्दों के बारे में कैसे और क्या महसूस करते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। So today is 12th January, celebrated as Swami Vivekananda's birthday, and it is also celebrated as Youth Day. So we will talk here today because the topic is it's all in the mind. So today we'll talk on the Vivekananda's words of wisdom on how to control mind. Mind comes under control when there is a feeling of oneness with God. Controlling mind is not one day job, but it needs a regular and systematic practice. It comes under control when there is a feeling of oneness with God. Your body is a weapon and consider it very strong, because when you will consider your body and mind very strong, then only you can be able to अपना नजरिया है। दुनिया को स्नेह भावना से देखो, तभी दुनिया की सुंदरता को देख पाओगे। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Mind. What is mind? The mind is a general term for the way a person thinks, reasons, perceives, wills, has ideas and feels. It is also said that the mind is the most powerful computer in the world. It is the mind which makes human being different from other animals. Aristotle once said, the energy of the mind is the essence of life. As we all know, our mind is the key center of our activity. What we think is reflected in our mind and is seen in our result. One needs to be positive to get happiness in life. It is the universal truth that one person sometimes be a failure, but if he keeps his mind positive and dedicated, he will surely be a winner one day. Now I am giving an example of a man who is a motivational speaker, born without leg, without arm. Doctor said he cannot survive. But on the occasion of National Youth Day, I'll start my speech by speaking a few lines of William Shakespeare. Nothing is good or bad, but thinking makes it so. We can understand this theme better by considering COVID situation. A deadly virus has locked us at home. Whole world is currently facing the challenging economic crisis and the confinement decree that India celebrates National Youth Day on January 12th year since 1985. This date is chosen to honor the birthday of Swami Vivekananda, one of the India's greatest spiritual and social leader. This year's theme is It's All in My Mind. On the occasion of National Youth Day, the Government of India selects a new theme each year. I would like to call our last participant,
Neetu Kumari Gop. Please come on the mic and present your speech. Chalo. Okay, ma'am. As we have came to the last page of the program, so I would like to end this by saying this that युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो यदि संगठित हो जाए तो एक नए और परिवर्तनशील युग का प्रारंभ कर सकती है। With this line, आप सभी को आज इस युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखें और अभी तो और बहुत सारा चीज ऐसा पता चल रहा है जो उपलब्धि असल में इंडिया का है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन जो खोजा है उससे 1000-2000 साल पहले इंडिया के ऋषि मुनि लोग अपने पुस्तक में लिखे हुए हैं। जैसे एरोप्लेन का है, राइट ब्रदर्स, हम लोग पढ़ते थे राइट ब्रदर्स एरोप्लेन बनाए थे, लेकिन उनसे 7 साल पहले इंडिया के ही एक वैज्ञानिक महाराष्ट्र के ये किए हुए थे, जिसका लिखित प्रमाण भी है। तो हम लोग को भी अपने कंट्री का जो खासियत है उसको जानना है। हम लोग को अगर पश्चिम का कोई अच्छा चीज है तो उसको भी जरूर देखना है, लेकिन ये नहीं सोचना। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज 12 जनवरी 2022 को हम लोग ऑनलाइन मोड पे युवा दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि हम जितने जुड़े हैं, चाहे वो शिक्षक हो या स्टूडेंट, हम सभी युवा हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और आज हम लोगों के धैर्य की जांच भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों का कार्यक्रम 12:30 से था और ये मोस्ट प्रोबेबली 1 या 1.5 घंटे चलती, लेकिन फिर भी अभी हम लोग लगभग 30 लोग ही इस ऑनलाइन मोड पर जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे धैर्य की जांच है और युवाओं में धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। शुरुआत में लगभग 71-72 लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे धीरे सारे लोग इस ऑनलाइन मीटिंग से लेफ्ट कर गए और हम अभी यहाँ लगभग 30 लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे धैर्य की जांच है, इसलिए मैंने कहा। अब हम अपने इस कार्यक्रम के समापन की ओर हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे इस ऑनलाइन राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा सर, वाइस चांसलर कुल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, अपनी बहुमूल्य उपस्थिति हम लोगों के बीच में दी और हमारे इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर दारा सिंह गुप्ता सर, एनएसएस कोऑर्डिनेटर कुल्हान यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हमें इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रेरित किया कि हमें यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग इसे कॉलेज लेवल पर ही कर रहे थे। उन्होंने ही मुझे कहा कि इसे हम विश्वविद्यालय स्तर पर करेंगे और हम मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वाइस चांसलर सर को बुलाएंगे। और ये सचमुच में बहुत ही अच्छी सोच थी, क्योंकि हमारे साथ हमारे बीएड सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो जस्ट अभी एडमिटेड हैं, तो उन्हें भी प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा सर से रूबरू होने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्राचार्य डॉक्टर लोकनाथ सर का, जिनका दिशा निर्देश, मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहता है, उनका सहयोग मिलता रहता है और उनके ही नेतृत्व में हम लोग यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे बीए डिपार्टमेंट के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का, हमारे विभागाध्यक्ष का, हमारे टीचर्स जो अभी तक जुड़े हैं, गिरीश चंद्र सर, सत्येंद्र रंजन सर, धनंजय सर और पुष्पा मैम, सुजाता पुत्रा मैम, मुबारक करीम हाशमी सर भी जुड़े थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के साथ से ही इस तरह का कार्यक्रम हम एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कर पाते हैं। आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बीएड सेमेस्टर 2 की छात्राएं, जो हमेशा 11th आवर में भी उनको कह दिया जाए कि हमें कार्यक्रम करना है तो वो रेडी होती हैं। विशेष रूप से पायल गुप्ता, जिन्होंने आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है, बॉबी कुमारी और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें बहुत सारे काम बांटे गए थे, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी टीम वर्क के साथ काम करते रहे
और जो कुछ भी आप लोगों ने आज यहाँ पे कहा है, सुना है कि युवाओं को इस तरह से होना चाहिए, और स्वामी विवेकानंद जी के जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको जो हमने सुना है उसे हम अपने जीवन में उतार भी सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं, और इस तरह का कार्यक्रम में आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आप लोगों की तरफ से लगभग 18 या 20 नाम आए थे स्पीच कंपटीशन के लिए, और ये पहला मौका था कि हम इस तरह से ऑनलाइन मोड पे कार्यक्रम कर रहे हैं। यदि परिस्थिति ठीक होती तो हम लोग ऑफलाइन मोड पे बहुत ही अच्छी तरह से आज के दिवस को मनाते। और आज का जो टॉपिक है या कहे राष्ट्रीय युवा दिवस का जो थीम है 2022 का, इट्स ऑल इन द माइंड, जिसके बारे में आप लोगों ने कहा कि जो हम सोचते हैं वैसे होते हैं। और हमारे सितेंद्र सर और गिरीश सर ने भी इस बात को कहा, और दोनों ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि उम्र का कोई मतलब नहीं होता, इट्स जस्ट लाइक अ नंबर। और जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कम उम्र में, अपने युवावस्था में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया, तो अब समय है कि हम अपने आप को उनके पद चिन्हों पर, उनके हर बातों पर चलने योग्य बना सके, तभी इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। तो अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।